سب سے پہلے تو میں CCI کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس لائق سمجھا کہ اس پروگرام کی صدارت کروں، اور صدارت کرنے میں جو سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ جس پروگرام کی میں صدارت کر رہا ہوں اس پروگرام کے جو آرگنائزرس ہیں اکثر جو ہے میرے اساتذہ کرام ہیں، جنہوں نے مجھ کو اس لائق بنایا کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکوں۔ تو اب مجھ کو 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ہم لوگوں نے جو کووڈ-19 کا جو پینڈیمک چل رہا ہے، جو وبائی یہ جو وبا چل رہی ہے، اس میں جو ہم لوگوں نے کام کیا ہے اس میں بہت ساری دشواریاں ہم کو آئی ہیں۔ میں پہلے اختصار کے ساتھ وہ جو بھی ہم کو پرابلمس آئے ہیں میں پہلے وہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات، جیسا انفراسٹرکچر جو ڈیولپ کنٹریز میں اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس لیول کا انفراسٹرکچر ہم بنا بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مالیگاؤں جیسے چھوٹے شہر اور انتظامیہ کے لیے اس لیول کا انفراسٹرکچر اویلیبل کروانا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ابھی بھی جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ دوسری چیز جو تکلیف ہم لوگوں کو یہاں پہ ہوئی ہے کہ وہ اویلیبلٹی آف اسٹاف، کہ اسٹاف ہمارے پاس ٹرینڈ اسٹاف بہت کم پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو جو ہے مریضوں کے علاج کرنے میں بہت دشواری اور پریشانی آئی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہمارے پاس جو اکوپمنٹس ہیں، آکسیجن سپلائی ہے اور اویلیبلٹی آف وینٹیلیٹر ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو مریض آ رہے تھے اگر 20 سے 25 مریضوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس ایک ہی مشین اویلیبل رہتا تھا۔ تو یہ جو ایک لیکیونا ہے، کیونکہ بہت مہنگی مشین ہوتی ہے، بہت کاسٹلی ہوتی ہے، ہر چیز اتنی مقدار میں اویلیبل کرانا ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں تھا، لیکن وہ ایک مشین کو ہم کیسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی اس کو استعمال کرنے کی۔ چوتھی جو چیز ہم کو جو تکلیف ہوئی ہے کہ جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس، جو PPE کٹس تھی، وہ مالیگاؤں میں بہت مشکل سے مل رہی تھی۔ اس ٹائم پہ جب یہ وبا کا زور چل رہا تھا مالیگاؤں میں، تو اس ٹائم پہ بہت مشکل سے اویلیبل ہو رہی تھی۔ تو ہمارے ساتھ جو سوشل ورکرز کام کر رہے تھے، ہمارے ساتھ جو اسٹاف کام کر رہے تھے، ہمارے ساتھ جو جونیئر ڈاکٹرز کی ٹیم کام کر رہی تھی، ان کے لیے PPE کٹس اویلیبل کروانا وہ ہمارے لیے بہت مشکل رہا۔ کچھ میڈیسن ایسی تھیں جو مالیگاؤں میں کیا ہندوستان میں بھی اویلیبل نہیں تھی، جس کی اویلیبلٹی میرے خود کے لیے، کیونکہ دوران مریضوں کا علاج کرنے کے دوران میں خود اس وبا کا شکار ہوا اور اتنا شدید بیمار پڑا کہ 25 دن تک مجھ کو خود اپنے ICU میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ تو سلیزومیب بول کے ایک دوا ہوتی ہے جو کہ بہت کاسٹلی رہتی ہے، ایک وائل، سنگل وائل کا انجیکشن کی قیمت اس کی 40,000 روپے ہے، جو کہ پورے انڈیا میں کہیں اویلیبل نہیں تھا۔ جب مجھ کو خود ضرورت پڑی تو بہت مشکل سے 3 انجیکشن مجھ کو حیدرآباد میں ملے اور اس کو ایئر لفٹ کر کے مجھ کو مالیگاؤں منگوانا پڑا۔ تو اس کا مالیگاؤں منگوانے کا خرچ مجھ کو 20,000 روپیہ لگ گیا۔ خیر اللہ کا احسان ہے، وہ دوا کی مجھ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، دوا مالیگاؤں پہنچے تک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا یاب کیا۔ تو یہ ساری جو دوائیاں تھیں وہ بہت مشکل سے مالیگاؤں میں مل رہی تھی، جو مجھ کو نہیں استعمال ہوئی، میرے ساتھیوں نے استعمال کی، ان کے خود کے رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ اور ریمڈیسیوائر ایک انجیکشن ہے جو کووڈ-19 میں اچھا ورک کر رہا ہے، یہ بھی انڈیا میں بہت مشکل سے اویلیبل رہا ہے۔ ابھی بھی مالیگاؤں میں اس انجیکشن کی اویلیبلٹی بہت مشکل ہے، اور اگر اویلیبل ہے بھی تو جو کامن مریض ہیں، جو غریب اور مزدور طبقہ ہے، وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی قیمت 5 سے 5,500 روپے اس کی قیمت ہے۔ تو یہ ساری جو تکالیف جو ہم کو یہاں پہ آئی ہیں، یہ وہ تھی۔ اب میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل ورکرز جنہوں نے ہماری مدد کی ہے مریضوں کے علاج کے دوران، اور ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی تعداد بہت کم ہے جو ہم کو ہیلپ کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پرسویٹ کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کو جو ہے اس بات کی ترغیب دینا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عوام کی خدمت کے جذبے سے اس مقصد کے لیے جو ہے ڈاکٹرز حضرات کے ساتھ میں، یا جو ایسی NGOs ہیں
जो इस ज़िम्न में काम कर रही हैं उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ें। और सबसे पहली चीज़ जो आपको इस काम के दौरान ख्याल रखना है कि अपनी खुद की हिफाजत करें, क्योंकि मैं खुद इस मर्ज का शिकार हुआ हूँ। सब पूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद भी, तो वो अल्लाह की तरफ की चीज़ है, लेकिन एहतियात बहरहाल हमको करनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो अगर अपन हॉस्पिटल से बाहर काम कर रहे हैं तो नॉर्मल सर्जिकल मास्क, ट्रिप्लायर मास्क जो रहता है वो इस्तेमाल करें, ग्लव्स इस्तेमाल करें। अगर हम हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, पेशेंट की खिदमत कर रहे हैं, तो N95 मास्क, कम से कम N95 मास्क हम इस्तेमाल करें। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि अगर PPE किट अवेलेबल है तो अगर हम हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं तो फुल PPE किट हम पहनकर और N95 मास्क और आंखों के लिए जो गॉगल्स दिए जाते हैं वो मास्क और वो गॉगल्स लगा के और ग्लव्स लगा के, ताकि हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो वायरस से एक्सपोज ना हो। और PPE किट पहनने के जो तरीके होते हैं जो हॉस्पिटल में हम लोग हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं उनको बताते हैं, उसको डोनिंग एंड डोफिंग बोलते हैं, कि अगर PPE किट हम सही तरीके से ना पहने और सही तरीके से ना उतारें तो उसमें इस बात का ज्यादा गुमान होता है कि हम खुद इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जो डॉक्टर्स के जरिए हिदायत दी जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है डोनिंग एंड डोफिंग की, उसके पहनने की और उतारने का जो अमल है जिसको डोनिंग एंड डोफिंग कहते हैं, उसके ऊपर पाबंदी से अमल करें। उसकी जो स्टेप्स बताई जा रही हैं उसके ऊपर जो है ध्यान से उसके ऊपर फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है कि अपनी खुद की हिफाजत करें, क्योंकि अगर हम खुद सेहतमंद रहेंगे तभी हम दूसरों की खिदमत कर पाएंगे, लेकिन अगर हम खुद ही मुतासिर हो गए तो हम दूसरों की कैसे खिदमत करेंगे। दूसरी चीज कि जब मरीज अपने पास आता है, जब हमको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये इस मरीज के अंदर जो कोरोना के अलामत है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन और सांस लेने में दिक्कत, अगर ऐसे कोई मरीज हमको मिलते हैं तो पहला काम हम ये करें कि उसको जितनी जल्द से जल्द हो सके उसको हॉस्पिटल में लाने की कोशिश करें। मालेगांव में जो शरह अमवात ज्यादा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझको समझ में आई है वो ये है कि अक्सर जो पेशेंट रहे हैं वो 15 से 20 दिन पूरे शहर में घूमे हैं। पहले तो जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर अपने लेवल पे जितना इलाज कर सकते हैं उतना इलाज किए हैं। उसके बाद जो है छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स हैं पहले वहां जाते हैं, जो जिनको अथॉरिटी नहीं है उनके ट्रीट करने की, वहां पे उनका इलाज किया गया। और जब आखिरी स्टेज में जब पेशेंट की सांस रुकने लगती है और उनका सैचुरेशन 70-80 तक चला जाता है, उसके बाद जो है MD फिजिशियंस के पास या जो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जो मुख्तस किए गए वहां पर लेके आते हैं। तो आखिरी स्टेज में जब आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स को लेकर के आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि वेंटिलेटर्स हमारे पास बहुत कम मिकदार में, बहुत कम तादाद में अवेलेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की जान बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, हम भी जो डॉक्टर्स हैं खुदा नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी हैसियत और इस्तिताअत दी है हमने पूरी कोशिश की है जान बचाने की, लेकिन चूंकि अक्सर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो बहुत लेट स्टेज में आए हैं, तो उसमें जो है मालेगांव के अंदर जो है शरह अमवात काफी ज्यादा रही हैं। नोटिफाई बहुत कम हो पाई हैं, लेकिन मेरा अंदाजा गालिब गुमान यह है कि तकरीबन 12 से 1500 अफराद की जो डेथ हुई है उसमें से जो है 90% जो डेथ्स हुई हैं वो कोविड की वजह से हुई हैं, चाहे उनकी तशखीस हुई हो या ना हुई हो। तो पहला काम आप ये करें कि जिस पेशेंट के अंदर कोरोना की अलामत जाहिर हो रही हैं उसको फौरन जितनी जल्दी हो सकता है उसको हॉस्पिटल में लाने की कोशिश करें, और हॉस्पिटल में लाने से पहले जितनी ज्यादा हो सके उसको आइसोलेट कर दें, दूसरे घर के अफराद से दूर करें। जितना हम समाजी फासला बनाकर रखेंगे ऐसे पेशेंट का, ताकि वो मर्ज दूसरों के अंदर ना फैले, और ऐसे लोग जो उनके कांटेक्ट में आ चुके हैं वो वॉलंटरी तौर पर आके अपनी जांच करवाएं, क्योंकि इस मर्ज का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मुताद्दी मर्ज होने के बावजूद काबिल इलाज है। 98% पेशेंट इसके रिकवर होकर मुकम्मल तौर से सेहतयाब होते हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। मुशाहिदे में ये आया है कि अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स हमको मिले हैं। कुछ लोग जो हैं
कोरोना मर्ज का इलाज मतलब उसका इनकार करते हैं कि ये मर्ज है ही नहीं, और कुछ लोग इससे इतने ज्यादा खौफजदा हैं कि जहनी तौर पर मरीज हो गए हैं, वो इतना डरे हुए हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो इत्तेदाल से चलना है, और फिजिशियंस की जो एमडी डॉक्टर्स उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे आ रहे हैं, जो हमारे पास तकरीबन मालेगांव में जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तकरीबन सबने काम किया है। कुछ इसमें कोताहियां हुई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन ये बोलना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर्स ने काम नहीं किया है। तमाम डॉक्टर्स ने काम किया है, जिनकी जितनी इस्तिताअत थी अल्लाह ताला ने जितनी उनके पास जो सहूलियात रखी है उतना सबने काम किया है। तो इसलिए किसी डॉक्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाना कि उन्होंने काम नहीं किया है ये गलत है। इल्जाम लगाने के लिए हम किसी का जो है हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। ऑब्वियसली हमारी तनकीदें बहुत सारी हुई हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और उलमाए किराम ने हमारी तनकीद की है कि हम जो है ओढ़ लपेट के बैठ गए हैं और पेशेंट से फासला रख रहे हैं, बाकायदा मजमून लिख के व्हाट्सएप पे चलाया गया है। अल्लाह उनको हिदायत देवे। तनकीदों से हमको मुतासिर नहीं होना है और हमको अपना काम करना है, ठीक है। और दूसरी एक सबसे अहम चीज कि जो सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जो ग्राउंड लेवल पे जो समाज के अंदर रहकर जो काम करना है वो सबसे ये है कि भाई उसके लिए अवेयरनेस बनाना है कि भाई ये मुताद्दी मर्ज है लेकिन काबिल इलाज है, उनको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और मास्क लगाने का एहतमाम करना है। हम लोग यहाँ पे मास्क लगा के नहीं बैठे हैं क्योंकि हम लोग एक आइसोलेटेड रूम में हैं, लेकिन जब हम लोग पब्लिक में जाते हैं तो हम लोग पूरा एहतियात करके जाते हैं। और जो चीज सबसे ज्यादा मैंने नोटिस की है हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाते हुए कि पब्लिक अभी भी गुटखा खाने वाले हजरात और ये जो गुटखा नहीं भी खाते हैं स्मोकर हजरात हैं वो अभी भी सड़कों पर थूक रहे हैं। तो ये मर्ज के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ऐसा कोई शख्स अगर हमारी नजर में आता है तो उसको डांटना नहीं है, उसको समझा के बोलना है, क्योंकि समझाने से ही बात समझ में आती है। अगर हम उसको डांटने और नसीहत करने जाएंगे तो कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सोशल वर्कर से मेरी मुद्दमाना दरखास्त है कि उनको समझाएं कि रोड पे सड़क पे ना थूके। हमारा दीन ऐसा है कि हमको थूकने की भी जो है तरगीब देता है कि कैसे थूकना है। मुकम्मल दीन है, अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो है मुकम्मल दीन बताया है। उलमाए किराम जो है हमारी रहनुमाई करते रहते हैं कि हम पे जो है पेशाब पाखाना करना और थूकने और तहारत करने का भी एक तरीका बताया गया है। तो उनको समझाने की कोशिश करें। हमारे घर के आसपास जो है साफ सफाई का ध्यान रखें। हम सिर्फ कोविड के चक्कर में ना पड़े। कोविड एक मर्ज है जो होता है और उसकी वजह से जो है हम दूसरे अमराज को नजरअंदाज करते हैं। अक्सर जो मरीज खराब होकर आए हैं, जो शुगर खराब कर लिए हैं, अपना शुगर कंट्रोल नहीं किए हैं, हार्ट अटैक के जो मरीज हैं जिनका बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुका है, उन्होंने अपनी दवाइयों में लापरवाही की है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं जिन्होंने अपना ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल किया या उनका इलाज वक्त पे नहीं हो सका है, ये बहुत सारी ऐसे अमराज हैं जिनकी वजह से जिनका दफाई निजाम जो है बहुत कमजोर रहता है और ये लोग जो है बहुत आसानी से जो है शिकार हुए हैं इस मर्ज का। अक्सर जो डेथ्स हुई हैं उनमें ज्यादातर मरीज जो हैं वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियक के रहे हैं, जो अपना इलाज बराबर से नहीं करवाते थे या इलाज में लापरवाही और कोताही करते थे। शुगर और ब्लड प्रेशर और कार्डियक जो डिजीज है ये बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं, बहुत आसानी से कंट्रोल होती हैं, लेकिन अगर हम इसका इलाज बराबर से ना करें तो इससे जो नुकसानात होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, मेरे पास अक्सर मरीज ऐसे आते हैं 200 और 200/100 या 190, 180 ब्लड प्रेशर लेके आते हैं। तो दिमाग की नसें जो बहुत बारीक बारीक होती हैं, जो इतने ज्यादा ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, या तो ये नसें फट जाती हैं या चुकअप हो जाती हैं। तो इससे अगर ये फौरन मरीज की डेथ हो जाती है। अगर मरीज को बचा भी लिया जावे तो सारी जिंदगी जो पैरालाइज रहता है, पेशाब पाखाना बिस्तर पे होता है, तो बेहतर यह है कि छोटे मर्ज को छोटा रखें, उसको बढ़ने ना दें। और आखिरी बात जो मैं अपने व्यूवर्स हैं उनको बोलना चाह रहा हूं कि भाई पब्लिक अवेयरनेस ये बहुत जरूरी है और यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आखिरी बात ये कि भाई मैं अपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आके अपनी बात रख सकूं। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम के मुताबिक
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब रहे। पहला प्रोग्राम था, पहले तजुर्बात थे, कुछ नकाइस कुछ खामियां रह गई, इंशाअल्लाह आइंदा उसे दूर कर दिया जाएगा। वक्त के ताल्लुक़ से भी और दीगर मतलब जो सब बातें हुई हैं इंशाअल्लाह आइंदा उस पर गौर किया जाएगा और जो भी कमियाँ रह गई इंशाअल्लाह आइंदा वो नहीं रहेगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम इस सेशन में ये बात रखने वाले थे कि आप भी उधर से कुछ सवाल करते, इधर से हम लोग आपके सवालात का जवाब देते, मौलाना भी जवाब देते, डॉक्टर इमरान साहब भी आपकी बातों का जवाब देते, लेकिन चूँकि वक्त तो बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपको जो भी आपके सवालात हैं, आपके जो भी मसाइल हैं, आपके जो भी अश्कालात हैं, आप उन तमाम को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है कोविड-19 का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है CCI का, आप उस पर उसे रवाना कीजिए। इंशाअल्लाह हम मौलाना से डॉक्टर इमरान साहब से मशवरा करके आपके सवालों का जवाब इंशाअल्लाह ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात इज़हार तशक्कुर की रह जाती है। ये बज़ाहिर ये बहुत छोटा मोटा प्रोग्राम था, लेकिन इसके इंतज़ामात में काफ़ी वक्त लगा, बाकायदा पूरी टीम हमारा सपोर्ट की है, तब कहीं जाकर हम आपसे यहाँ पर आप मुखातब हो सके हैं। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मोहतरम महफूज मोहम्मद इसाक ज़रीवाला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने और उनकी टीम ने इस प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए बहुत अपना ताउन पेश किया। मैं CCI की जानिब से महफूज साहब का, उनकी टीम का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा हमारा ये जो प्रोग्राम जिस जगह यहाँ हो रहा है, ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के हेडमास्टर साहब के ऑफिस में हो रहा है, मैं CCI की जानिब से ATT इंतज़ामिया, हेडमास्टर साहब और उनके जो स्टाफ के जिन लोगों ने हमारा ताउन किया है, जो हमारे वॉलंटियर्स के तौर पर काम किया है, मैं उन तमाम लोगों का भी CCI की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद हमारे मेहमानान जिन्होंने हमें बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया है। आप देख रहे हैं कि मौलाना मोहम्मद हसनैन साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, इतने मसरूफ़ हैं वो, रोज़ाना कोई ना कोई उनका प्रोग्राम रहता ही है और बहुत ही हमारे शॉर्ट नोटिस पर एक बात पर मौलाना ने बैक कहा। मैं CCI की जानिब से मौलाना का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। डॉक्टर इमरान साहब, इन्होंने भी हमारे बस एक बात जाकर उनसे कही गई, उन्होंने फ़ौरन लब्बैक कह दिया और आपने देखा अभी कि कितनी तैयारी से डॉक्टर साहब ने हमसे खिताब किया है, बहुत ही कम वक्तों में कितनी काम की बातें हमसे कही हैं। मैं CCI की जानिब से डॉक्टर साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात की तवक्को करता हूँ तमाम साहिबान से कि आइंदा भी जब हम उन्हें याद करेंगे तो वो हमको जो है ना नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ पहला प्रोग्राम है। अभी तो हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले में एक तवील प्रोग्राम करने का इरादा रखते हैं और उसको इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। आपके ताउन की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपने जो लिंक किया है अभी हमारे इस प्रोग्राम से, जो नहीं किया है उनसे भी आप कहिए कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आपके लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही समरआवर साबित होगा। इंशाअल्लाह हम आइंदा फिर आपसे इस ताल्लुक़ से कॉन्टैक्ट करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ और आप तमाम लोगों का फिर एक मरतबा शुक्रिया।